So today's discussion is on interview. Congratulations to all of you who have received the call for interview. अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा डर वाला एक माहौल भी आता है क्योंकि बड़ा नज़दीक हैं आप अपनी सक्सेस के. So I would like you people to ask your doubts, and definitely I can talk a lot about interview and how to conduct yourself best in an interview situation. बहुत बातें कर सकते हैं हम, आई कॉन्टैक्ट से लेके बॉडी लैंग्वेज तक, कपड़े कौन से पहने जाएं, डैफ को कैसे तैयार, बहुत सारी बातें कर सकते हैं. लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम सीधा पहले उन डाउट्स को, स्पेसिफिक डाउट्स को क्लियर करें जो आपको लगता है आपकी इंटरव्यू कारगर साबित होंगी या नेसेसरी हैं. हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. So supposedly you are interested in, or you have written in your hobbies, any book, any series, any particular thing, you must always be ready with the question, or you should always be ready with the answer to the question. आपने उससे क्या सीखा? What have you learned out of it? Because as an officer you must be taking any activity with a basic purpose in mind. Basic purpose, कुछ आपने उस एक्टिविटी से सीखा या नहीं सीखा, वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है हमारे ओवरऑल इंटरव्यू में जज करने के लिए. तो वट एवर यू हैव लर्नड. सेकेंडली, विच वर्जन ऑफ भगवद गीता हैव यू रेड? देयर आर लॉट ऑफ गीता, वेरियस वर्जन्स. विच वन हैव यू रेड? व्हाट यू डिड नॉट लाइक अबाउट गीता? Is there anything which you did not like? तो वो ऐसी क्या चीज़ है? Who wrote Gita and why? There are things like this. Apart from that, interview is basically a formal conversation. Formal conversation means no casual language, no language like yeah, yes, yep sir, yep. You should not be speaking such words, such languages, such slangs. Yo, yes sir, yes so, है ना, वो जो आप एक टोन में बोलते हैं ना, अंग्रेजी वाली टोन में, should not be speaking in that tone. It's a formal conversation, absolutely formal. So do not try to use the slangs you use with your friends, yeah, and all of these things. You know, code doesn't know. So you should not be using you know sir, or all these not be used. Go like you are an officer and you are talking to 5 very intelligent and very respectable people. So you must go with the mindset of an officer. Okay, नीचे बहुत सारे questions. Let us take them one by one. Ma'am, my hobbies are badminton and dancing. Okay. So देखो, badminton is a sports and dancing is a discipline in itself. So the questions that can be asked is, where do you play badminton? Have you played it professionally? Professional badminton अलग होता है और घर के बाहर जो हम खेलते हैं ना गली में, वो अलग होता है. So you must first know what type of badminton do you play. If you are not playing it professionally, then either you should have written in your DAF unprofessional badminton. I'm not a professional in a badminton sport, but if it is not written, or it's fine. So at least you can, if they ask, you can tell them, sir, I play it as a hobby outside my house or near in a nearby park. I do not play it professionally. Means they do not ask you questions which are required to be known by a professional badminton player. तो जो आप वो फालतू के फैक्ट्स रटने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज यू हैव रिटन अ बैडमिंटन एज अ हॉबी, वो ज़रूरत नहीं है. कितने मीटर का वो होता है, पढ़ लीजिए, इट्स ओके, जस्ट मे बी टू टेस्ट इट दे मे आस्क यू. उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बैडमिंटन खेलने से आपको क्या बेनिफिट्स? व्हाट ऑल डू यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ बैडमिंटन इन योर लाइफ? Why did you choose badminton over some other sports like volleyball, cricket? Some other sports are also there. क्यों choose किया आपने? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपको लगता है कि जो आपने बैडमिंटन से क्वालिटीज डेवलप करी वो हेल्पफुल होंगी क्या?
You know, all these questions become really important as a, when you say badminton as your hobby, and maybe the commercial aspect of badminton, like commercial aspect like BPL, Premier League, Badminton Premier League, all of these things can be prepared. But do not prepare it like one question, one answer, one question, one answer. Do not prepare it like that, because if you do it one question, one answer, then it creates very rattu tota wala boring answer, and then it doesn't look good, it doesn't fare well. तो रटना नहीं है, आपकी हॉबी है, उसको इंटरनेट पे जाके रीड करना है, उससे क्वेश्चन बना के आंसर नहीं बनाने, पहले रीड करना है. यू मस्ट रीड योर हॉबी एक्सटेंसिवली, गो ऑन द वेबसाइट badminton.com, or maybe there may be certain sites talking about badminton as such. So you go and read in general. Do not start making questions. Badminton heading. First question, what is the dimension of badminton court? Second question, this and that. Who invented badminton? So when you start making question, you actually stop the learning. And when you give your answers, वो कैसे आते हैं? आर्टिफिशियल, बड़े आर्टिफिशियल टाइप के, रट्टू तोते टाइप के आंसर आते हैं, और वहाँ पे जाके हम उन्हें भूल भी जाते हैं. इसीलिए पहले एक रैंडम रीडिंग दीजिए, फिर क्वेश्चंस को आंसर करके देखिए. आंसर मतलब लिखना नहीं है कॉपी में. इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कॉपी पेंसिल, बिल्कुल नहीं लिखना. अच्छा, किस किस ने नोट्स बना लिए हैं इंटरव्यू के? नोट्स बनाने तो नहीं शुरू करे, है ना? नहीं बनाने हैं. जहाँ बहुत ज़्यादा नोट्स बनाओगे वहाँ पे दोबारा से मेंस वाले मोड में आप चले जाओगे. मेंस वाले मोड में नहीं जाना, इंटरव्यू वाले मोड में रहना है. जहाँ भी आपको बोलना है, वेन एवर यू फील लाइक प्रैक्टिसिंग, स्पीक. स्पीक. हाउ वुड यू स्पीक दिस? हाउ वुड यू से दिस? नोट्स आर मेंस एंड प्रीलिम्स थिंग. फॉर इंटरव्यू, thought process and how will you speak, that is the most important thing. इसके अलावा अगर आप वो बना रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर नीचे आंसर लिख रहे हैं, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाती है. वहाँ जाके ना, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो याद आता है क्या लिखा था उसके नीचे ना. वो आपकी नज़र, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और आप याद करने लगते हो कि वहाँ क्या लिखा था जो मुझे बोलना है. और जब आप उसे बोलते हो तो समझ में आता है आपने सोच के नहीं बोला, याद करके बोला है. ये एक्सप्रेशन आते नहीं, और जब एक्सप्रेशन आते नहीं तो वो जो बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन ऐसे निकल गई वो स्ट्रेट, कुछ उसका कुछ कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया. फ्यू फैक्चुअल थिंग्स, 2-3 पन्ने अच्छे से, मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं, बिल्कुल उतना हमें अपने होम स्टेट को प्रिपेयर करना चाहिए. क्योंकि देखिए, जिस स्टेट से आप हैं, जहाँ के हैं, अगर आपको वहाँ के बारे में नहीं पता, तो ये बोर्ड मानता है कि मतलब फिर आप आगे जहाँ जाएंगे एज एन ऑफिसर, वहाँ के बारे में कितना ही जान पाएंगे. तो जहाँ पैदा हुए, स्कूलिंग करी, इतने साल आपने अपने बिताए, और अगर वहाँ पे से अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि बताओ 3 मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं आपके स्टेट के, और आप वो नहीं बता पा रहे हैं, या फिर आप बहुत जेनेरिक बता रहे हैं, जेनेरिक मतलब इंडिया वाले ही कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, then it means that you have not given sufficient thought about your state. आपने कभी बैठ के ऐसा सोचा नहीं, यार मेरा परेशानी या क्या मुझे उसमें ठीक करना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं, उसके विषय में आपने नहीं सोचा. और अगर आपने कभी अपने स्टेट के विषय में नहीं सोचा, मतलब आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आपके मन में देश को ठीक करने के लिए या उसमें कुछ काम करने की इच्छा कभी नहीं थी. क्योंकि अगर इच्छा होती तो सोचते ना कि जब कभी मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो करूंगी क्या. सिलेक्ट होना इज वन पार्ट, वन एस्पेक्ट. सिलेक्ट होना इज दी वन एस्पेक्ट.
उसके बाद क्या करेंगे? यू आर नॉट अट्रैक्टेड बाय दैट थिंग, उसके बाद क्या करेंगे, तब प्रॉब्लम है. एंड योर आंसर्स शुड रिफ्लेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क, नॉट जस्ट क्लियरिंग दिस वन पर्टिकुलर एग्जाम. Ma'am, is it required to make eye contact with every member even when I am answering to one member's answer, as it is often attracts attention to the line of thought while answering? No, you don't have to. Keep it natural. Now, eye contact is all about trust. If I'm talking to you, and if I don't look at you, I look at him and talk to you. Does it look good? No, it doesn't look good, and it won't build the trust. है ना, आंखों में आंखें, कभी कहते हैं ना आंखों में आंखें देख के बात करो. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप आंखों में आंखें देख के बात कर रहे हो तो आप सच बोल रहे हो. दिस मीन्स दैट इट बिल्ड्स अ ट्रस्ट फैक्टर. So whenever you are talking to whoever board member, you should look at him or her. Maybe while once or maybe twice, you just see if others are also engaged or not. अगर वो नहीं देख रहे, अपना काम कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं आप ज़बरदस्ती उनको ऐसे 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 करके बार बार देखते रहो, कोई ज़रूरी नहीं है. जिससे बात कर रहे हो उसी से बात करो. एब्सोल्युटली आई कॉन्टैक्ट हैज़ टू बी रियली नेचुरल. ना घूरना है, ना ही आंखें चुरानी है ना. ऑप्टिमल, बिल्कुल नेचुरल, जैसे आप लोग अभी देख रहे हो नेचुरल. एक दूसरे से बात करते हुए देखते हो, पेरेंट्स से बात करते हुए पेरेंट्स को देखते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली नेचुरल. डू नॉट स्टार्ट लाइक दिस, है ना, एकदम आंखें खोल के ज़बरदस्ती, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं. डू नॉट ऑसिलेट लाइक दिस, कोई ज़रूरी नहीं. जिससे बात करो उससे उसकी तरफ ध्यान दो ना. क्वेश्चन उसने पूछा है ना, you should focus on the person who have asked the question. A line of questioning for aerospace engineering background, Sheetal. So aerospace engineering background is a very interesting area. So if somebody from engineering side is there, they may ask you some technical questions like stealth, designing for the stealth, what is the new in aerospace engineering, and why aerospace engineering is not having lot of scope in Delhi or India as such. क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर एरोस्पेस इंजीनियर्स क्या हैं, रिपेयर्स में ज़्यादा एंगेज्ड हैं rather than न्यू रिसर्च. ज़्यादातर को बाहर जाना पड़ता है. So you can talk about, you can discuss about this aspect of aerospace engineering. And apart from that, engineering itself includes certain questions. ऐसा मान के चलते हैं कि इंजीनियर हो तो कुछ बेसिक थ्योरम्स, कुछ बेसिक मैथ्स के चीज़ें आपको आती होंगी. कई बार वो बस ऐसे ही लगता है कि इंजीनियर है तो इससे बेसिक बर्नौलीज थ्योरम पूछ लो ना. तो और बहुत बार ऐसा तो आपको पता होता है लेकिन आपने कभी रिवाइज नहीं करा, कभी देखा, मतलब बहुत दिन हो गए उसे सोचा नहीं है, तो उस वक्त पे एकदम ध्यान नहीं आता है. सो इट इज़ बेटर दैट यू गिव वन डे, एंड इन दैट वन डे जस्ट ब्रश अप बेसिक्स. वो आपसे कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी मौका मिले यू कैन ट्राई एंड पुट इन योर एक्सपर्टीज.